Hello students, I hope you all are doing well, and this is the video number 2 line by line explanation of class 12th Flamingo chapter number 3 deep water. Student, the link for the video number 1 is in the description box. So I hope before going through this part you have already gone through the video number 1. Student, the motive behind the line by line explanation of your NCERT book is to able to make you learn and able to understand your chapter line by line thoroughly by keeping you safe at home. So I hope that you are enjoying this session. So without any further ado, let's start. Students, शुरू करते हैं हम लोग. But the jump made no difference. There was water still around me. When the William Douglas was stuck under the water of the YMCA pool, then he made effort to come out of the water. At that time he didn't know how to swim, so he was stuck. So he was trying to get out of the water by hitting the floor with his leg, and he had made a concept that when he hit the floor with all his strength he will able to move out, but he didn't get succeed. Okay students, so but the jump made no difference. William Douglas again tried and he didn't able to come out. I looked for rope, ladders, water wings. So under the water he looked for rope, ladders, water wings. सबके लिए देखा कहीं ना he looked for the equipment so that he can able to come out. लेकिन कुछ भी नहीं मिला. But water, only he saw over there water. A mass of yellow water held me. The color of the water under the pool was yellow, so is that the mass of yellow water held me, that he was surrounded by water all over there. Stark terror took an even deeper hold on me like a great charge of the electricity, and then eventually a terror, डर हो गया कहीं ना कहीं, मतलब stark complete, we can say that a complete fear has taken a charge on him like an electricity. I shook and trembled with fright. कहीं ना कहीं काँप रहे थे, डर रहे थे, बिल्कुल डर की वजह से मतलब डर गए थे. माई आर्म्स वुडेंट मूव, माई लेग्स वुडेंट मूव, ना हाथ और ना पैर उनके हिल रहे थे. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड. तो कहते हैं यहाँ पे उन्होंने मदद के लिए आवाज़ लगाई अपनी मदर के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज ही वॉज स्टक अंडर द वाटर. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट. तभी अचानक एक लाइट रोशनी चमकी. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर. He was coming again out of the awful yellow water. That yellow water कलर बता रहे हैं. At least my eyes were, my nose was almost out too. जब ऊपर आते हैं तो उनकी आंखें और उनका जो नोज़ है वही बाहर आते हैं. And then I started down a third time. Then again he was going inside the water third time. I sucked for air and got water. हवा सोचा खींचे थोड़ा सा, लेकिन क्या हुआ, वाटर चला गया. द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट. जो पीला लाइट था वो अब जा रहा था अगेन, मतलब वो नीचे जा रहे थे. देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्सड. अब सारा जो एफर्ट था वो रुक गया. सीज मीन्स स्टॉप, एंड आई रिलैक्सड. अब वो ठहर जाते हैं. इवन माई लेग्स फेल्ट लेम. अब उनके जो लेग्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अब लग रहे थे फ्रोज, मतलब हो चुके थे, मतलब लाइफलेस, बिल्कुल ऐसा लग रहा था अब उनमें जान नहीं है. एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. और अंधेरा छा गया दिमाग पे. इट वाइप्ड आउट फियर. डर गायब कर दिया. इट वाइप्ड आउट टेरर. बिल्कुल जो होता है, मतलब कहीं ना कहीं जो डर भय होता है सब गायब. देयर वॉज नो पैनिक. और कुछ भी आपाधापी नहीं थी, कुछ भी डर, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था बचना है, बाहर निकलना कहीं ना कहीं. अब मतलब कहीं ना कहीं ही वॉज गोइंग टू इन द स्टेट ऑफ नम्बनेस, बेहोश होने वाले थे. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल. सब शांत लग रहा था, सब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कुछ भी, अब एवरीथिंग इज़ पीस, एवरीथिंग इज़ साइलेंट, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं. दिस इज़ नाइस टू बी ट्राउजी टू गो टू स्लीप. बहुत अच्छा है, नींद आ रही है, सो जाना चाहिए. नो नीड टू जम्प, ना ही कूदना है. टू टायर्ड टू जंप करते करते थक गए. एंड इट्स नाइस टू कैरी जेंटली टू फ्लोट अलॉन्ग इन द स्पेस. बहुत सही है, आराम से पानी में जैसे जैसे फ्लोट हो रहे बह रहे हैं वही सही है. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. ऐसा लग रहा था बिल्कुल नाजुक जो हाथ हैं, सॉफ्ट हैंड्स हैं मदर के. सब मेरे आसपास लग रहा था कि हाथ है, अब कहीं ना कहीं मुझे अब सो जाना चाहिए. मतलब हेयर विलियम डॉगलस वॉज इमेजिनिंग द डेथ. कहीं ना कहीं अब उनको एफर्ट जो था, कुछ एफर्ट, पूरा एफर्ट ख़राब जा रहा था, तो अब उन्होंने कहीं ना कहीं हार मान रहे थे स्टूडेंट्स यहाँ पर. ओके, आई
आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। अब कहीं ना कहीं वो भूल से गए थे। ऑब्लिवियन मतलब भुलक्कड़पन आप कह सकते हो, फॉरगेटफुलनेस कह सकते हो स्टूडेंट्स। तो कह रहे थे कि आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, ऐसा लग रहा था कि अब मैं उससे भी आगे, भूलने की उससे भी आगे बढ़ चुका हूँ और ऐसा लग रहा था कि अब जो जीवन का पर्दा है वो गिरने वाला है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पुल वॉमिटिंग। अब अगली बात तो अगर मुझे याद थी तो मैं पुल के बगल में लेटा हुआ था और वहाँ पे क्या हो रहा था, मैं पेट के बल ऑन माई स्टोमक, पेट के बल लेटा हुआ था और मैं उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, लड़का जिसने मुझे पानी में फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा था, मजाक कर रहा था। Someone said the kid nearly died. तभी किसी ने कहा कि बच्चा लगभग मर जाता, डेथ हो जाती। Be all right now, let's carry him to the locker room. अब सब सही है, चलो इसको क्या है लॉकर रूम तक लेके जाया जाए। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. कुछ घंटों बाद मैं घर आया और काफ़ी कमज़ोर लग रहा था, डर रहा था। I shook and cried when I lay on my bed. मैं काँप रहा था, रो रहा था जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा। And I couldn't eat that night. और उस रात मैंने खाना नहीं खाया। For days a haunting of fear was in my heart. कई दिनों तक मेरे हृदय में वो जो डरावना पल था वो बार बार आ रहा था। The slightest exertion upset me. थोड़ी सी भी थकावट होती तो मैं बेचैन हो जा रहा था। Making me wobbly in the knees and stick to my stomach. कहीं ना कहीं अनस्टेबल कर दे रहा था मेरे को, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों को, मेरे जो घुटनों हैं उनको अनस्टेबल कर दे रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल। हियर विलियम डॉगलस इज सेइंग दैट आफ्टर दैट इंसिडेंट ही नेवर एवर बैक टू द पुल एंड आई फियर्ड वाटर। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड। पानी से डरने लग गया, जब कभी भी हम होता था वो पानी को अवॉइड करते थे स्टूडेंट्स। ओके, A few years later, when I came to know the waters of the cascade, I wanted to get into them. कुछ सालों बाद जब मैंने कैस्केड्स के बारे में, जगह वहाँ के बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि अब यहाँ पे पानी, वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे सोचा कि उस अंदर जाए पानी में। And whenever I did, whether I was wading the Triathlon or bumping river or bathing in the warm lake or the grey goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. अब ये जगह है कैस्केड, वहाँ जाते हैं तो कभी भी जब जाते हैं तो whenever I did, जब कभी भी मैं वेडिंग, टीटन और बम्पिंग रिवर, जब या फिर वो ये टीटन और बम्पिंग रिवर ये नदी का नाम है, जब इसमें अंदर जब प्रवेश करते थे, चलते थे, या फिर वार्म लेक और गोट ऑफ द गोट रॉक्स के जो वार्म लेक है वहाँ पे जब वो बात करते थे, तो जो जो डर था वो दोबारा से पुल वाला डर उनके पास वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कम्प्लीटली। कहीं ना कहीं वो डर ने पूरा का पूरा मेरे पर कंट्रोल कर लिया था। माई लेग्स वुड ट्रैम्बल पैरालाइज्ड। कहीं ना कहीं मेरे पैर काँप रहे थे, बिल्कुल पैरालाइज हो जा रहे थे, बिल्कुल स्थिर हो जाते, रुक जाते थे। आई सी हॉरर वुड ग्रैब इन माई हार्ट। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डर मेरे हृदय को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर रोल्ड बाय। और ये जो हैंडीकैप था, कह सकते हैं कि अनेबल टू स्विम, ये कहीं ना कहीं जो हैंडीकैप था ये बहुत सालों तक उनके साथ रहा। इन कैनोस ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर अ लैंडलॉक सैल्मन। ये बता रहे थे कि कैनोस में मेन लेक है, वहाँ पर एक बार स्मॉल बोट, छोटी सी, मतलब इन कैनोस छोटी सी बोट है एक मेन लेक में, वहाँ पर एक बार सैल्मन मछली के लिए ये वो कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे स्टूडेंट्स। सो एंड बैस फिशिंग इन हैम्पशायर। और हैम्पशायर में क्या कर रहे थे, न्यू हैम्पशायर में बैस फिशिंग, ट्राउट फिशिंग, ये डिफरेंट टाइप की फिशिंग फिश हैं उसके बारे में बता रहे हैं। डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन एंड फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलम्बिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स। ये सब बता रहे हैं, ये सब चीज़ें बोट पे जाके वहाँ फिशिंग करते थे स्टूडेंट्स। वेर एवर आई वेंट हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। जहाँ जहाँ जाता था वो जो डर था पानी का वो बार बार मुझे डराता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स। कहीं ना कहीं मेरे जो फिशिंग ट्रिप्स है उसको ख़राब कर देता था। एंड डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। और कहीं ना कहीं इसी डर की वजह से जो आनंद होता है कैनोइंग का, बोटिंग का एंड स्विमिंग का, ये सब कहीं ना कहीं मैं आनंद नहीं उठा पा रहा था। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फेयर। मैं हर एक तरीका अपना लिया जिससे कि मैं इस डर पर काबू पा सकूं। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन इस डर ने मेरे को पूरी तरीके से जकड़ लिया। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। फाइनली 1 अक्टूबर को मैंने एक इंस्ट्रक्टर को मैंने सोचा कि एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया जाए और मैं तैरना सीखूं।
आई वेंट टू अ पुल एंड प्रैक्टिस 5 days a week। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, विलियम और डॉगलस ट्राई कर रहे हैं अपने उस डर पर जीत पाने के लिए, तो ही इज़ नाउ मेकिंग एन एफर्ट। तो कह रहे हैं कि वो पुल पर गए और वहाँ पे 5 दिन तक उन्होंने प्रैक्टिस करी, एन आवर ईच डे, हर दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर क्या करता था, एक बेल्ट मेरे लगा देता था, and then a rope attached to the belt went through a pulley that ran on the overhead cable and he held on the end of the rope। और ये कहते थे कि वो बेल्ट जो बेल्ट उन्होंने विलियम और डॉगलस को उनके इंस्ट्रक्टर ने लगाई थी, उसके दोनों साइड पे रोप थी, एक रस्सी था, और उससे क्या करते थे कि उसके ऊपर एक वो रस्सी ऊपर जाती थी और एक पुली पे, पहिए पे वो चक्र पे लगी हुई थी, जिससे क्या करता था कि उसका कंट्रोल उस आदमी के हाथ में रहता था। तो उससे जिससे कि वो पैरों वो सीख सकें, जो तैरना होता है, जो स्ट्रोक्स होते हैं पैर और हाथ से लगाना, वो सीख सकें। ओके, एंड वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे। अब क्या होता था, उसी के सहारे, चेन के सहारे वो एक जगह से जाते थे, आते थे वही पुल के तरफ जाने की, आफ्टर वीक हर दिन उन्होंने यही प्रैक्टिस करी। मतलब उनके जो ट्रेनर थे स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्टर थे, वो ट्रेन कर रहे थे उनको कि कैसे वो पानी पर अपना कंट्रोल कर सकें। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। कहीं ना कहीं हर बार वो जो बार जो ट्रैवल कर रहे थे स्टूडेंट, बार जो पुल को क्रॉस कर रहे थे, तो जो पैनिक था, डर था, वो बार जकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न माई लेग फ्रोज। और कभी क्या होता था, हर ट्रिप में वो जो इंस्ट्रक्टर था, वो जो होल्ड था, जो रस्सी था, थोड़ा सा उसको ढीला कर देते थे, और फिर क्या करता था कि वो पानी में थोड़े से चले जाते थे, नीचे चले जाते थे, क्योंकि वो जो उनके इंस्ट्रक्टर ने रस्सी पकड़ी हुई थी, तो उससे वो पानी में ऊपर रहते थे, तो वो सीखते थे। और कभी कभी कोई इंस्ट्रक्टर उनको सिखाने के लिए वो रस्सी को थोड़ा सा होल्ड डाउन कर देते थे, जिससे कि वो पानी के अंदर चले जाते थे स्टूडेंट, ज़्यादा अंदर। तो जिसकी वजह से क्या होता था, फिर से वो डर उनके पास आ जाता था और उनका जो पैर था वो फिर से फ्रोज हो जाता था, मतलब डर से वो हिल ही नहीं पाते। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। 3 महीने हो गए इस टेंशन को, जो डर पर इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर द वाटर एंड एक्सेल। फिर 3 महीने बाद उनके जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको क्या सिखाया कि अपना जो फेस है वाटर के अंदर डालो और सांस लो, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेलर। फिर क्या कहते थे, बाहर निकल के फिर से अपने सांस लो नाकों से, फिर उसके बाद से अंदर, फिर सिर पानी के अंदर। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 times ऑफ डे। और उन्होंने कहा कि इस एक्सरसाइज को मैंने दिन में 100 times कर रहा था। बिट बाय बिट आई शेड द पार्ट ऑफ द पैनिक। और धीरे धीरे करके जो डर का जो पार्ट था वो मैंने ख़त्म किया। दैट सीज मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर द वाटर। जब धीरे धीरे क्या होता था, जब मैं अपना सिर पानी के अंदर डाल रहा था, तब क्या हो रहा था कि वो जो धीरे धीरे करके जो मेरा डर था पानी का, वो ख़त्म हो रहा था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। और अगला उन्होंने क्या करा कि पुल के साइड में लेके और फिर अब किक, पैर लेग से किक करना सिखाया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। सिर्फ 1 हफ्ते तक वही किया। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क। शुरू में तो मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड। फिर बाद में वो सही हो गए, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। लास्ट में क्या हुआ कि अब विलियम और डॉगलस का पूरा कंट्रोल उनके पैरों पर आ गया था। दिस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। इंस्ट्रक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, धीरे धीरे चीज़ें सिखाकर उनको एक अच्छा स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू अ इंटीग्रेटेड होल। और हर एक चीज़ को सही करने के बाद में उन्होंने सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक बहुत बढ़िया स्विमर बना दिया, जैसे पानी पर कंट्रोल, पैर पर कंट्रोल, देन उसके जो फियर था उस पर कंट्रोल, सब चीज़ों को उन्होंने, उनके इंस्ट्रक्टर ने उनकी हेल्प करी। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। और अब अक्टूबर से शुरू हुई ये ट्रेनिंग, और अप्रैल में उनके टीचर ने कहा, इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम ऑफ द लेंथ ऑफ द पुल क्राwl स्ट्रोक। और जाओ, डाइव करो और पूरे पुल पे तैरो, स्विम करो, क्रॉल स्ट्रोक करो, जो अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं स्टूडेंट्स। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। मैंने किया और अब इंस्ट्रक्टर का यहाँ पर काम ख़त्म हो गया। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो यू कैन शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड एंड आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन वेज एंड ऑल इन द पुल। अभी मैं ख़त्म नहीं हुआ था, मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं इस पुल में अकेले कभी आया तो क्या फिर से वो डर वापस आ जाएगा। आई ट्राइड इट एंड आई स्वैम लेंथ अप एंड डाउन। मैंने ये कोशिश करी, जब अकेले था मैं पूरा पुल अच्छे से तैरा, स्विम किया। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। थोड़ा थोड़ा करके जो पुराना डर था, वेस्टिजेस साइंस कहते हैं, साइन, निशान, जो यादें थी वो बार बार आ रही थी। लेकिन क्या हो रहा था स्टूडेंट कि
फिर से क्या होता था कि वो बट नाउ आई कुड क्रॉल फ्रॉम एंड सेट टू द टायर। लेकिन अब क्या होता था कि जब भी वो डर आता था तो मैं कहता था उससे, मतलब वो अपनी भौहें को चढ़ा के कहता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, हाँ डराने की कोशिश कर रहे हो। वेयर हेयर्स टू यू लुक एंड ऑफ आई गो फॉर अनदर लैंड ऑफ द फुल। फिर मैं कहता था कि चलो देखो, फिर से उस डर पर काबू पाने के लिए दोबारा से एक पुल पे की स्विमिंग करते थे। दैट्स द फियर स्टूडेंट्स, इट टेक्स टाइम। जो हमारा डर होता है स्टूडेंट्स, उस पर काबू पाने के लिए अगर हम ये सोच रहे हैं कि 1 दिन 10 दिन 15 दिन, तो नहीं, we need to make an effort for that. For example, if you are unable to write a good article, good debate in your English students, so it doesn't mean that before the exam day night and 10 days 5 days before you can able to write. No students, if you want to score a good marks in your English, you need a consistent practice for that. This is the key mantra for getting a good marks in your class 12th इंग्लिश कोर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। सो दिस, अब शुरू करते हैं वीडियो को। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल टेरर हैड लेफ्ट। अब ये जुलाई तक चला, ये जो मैं पुल पर स्विमिंग कर रहा था, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था, अभी भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक डर है। सो आई वेंट टू द लेक। कहाँ गए स्टूडेंट, याद रखना ये नाम। I went to the lake Wandsworth in New Hampshire. मैं कहाँ गया, Wandsworth Lake, New Hampshire, and died of the dock at the Triggs Island and swam 2 miles across the lake to the Stampede Island. Wandsworth Lake पर गए और वहाँ पे मतलब ट्रिक्स आइलैंड के जो डॉक्स पे एक स्थान से वहाँ पे उन्होंने डाइव किया और फिर 2 मील तक उन्होंने स्विमिंग किया। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ये स्विमिंग में अलग अलग तैराकी के होते हैं स्टूडेंट्स, वेज होते हैं, तो यही बता रहे हैं, क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार ही वो डर आया, व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बिल्कुल बीचों बीच था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। मैंने तो अपना मुंह अंदर डाला पानी के अंदर, कुछ नहीं दिखा, सिर्फ एक वाटर ही वाटर मेरे को दिखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, वही पुराना डर थोड़ा सा आया वापस। एंड आई लाफ एंड सैड, और मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। वेल मिस्टर डर, क्या कर सकते हो आप मेरे साथ, क्या सोचते हो। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, वो डर चला गया और मैं वहाँ पर फिर से तैरा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, थोड़ा सा डाउट था और मैंने शुरू वाली अपनी जो अपॉर्चुनिटी थी, वेंट अप टू द Teton and concrete Weedens, substitute a concrete trails to the middle glacier and camped in the high meadow of the side of the warm lakes. These are the places जहाँ पर वो जाकर ठहरे स्टूडेंट्स। ओके, the next morning I slipped down in the lake and swam across the other shore and back just as a dog coprin used to do. अगले दिन क्या हुआ, मैं दोबारा एक लेक पर गया और फिर मैंने उसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाकर वापस आया, मैं जैसा कि एक डॉग कॉपरिन किया करते थे। I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo and I had conquered my fear of water. और मैं बिल्कुल जब ये मैंने काम किया, मैं बहुत चिल्लाया अच्छे से, खुशी से। और गिलबर्ट पीक, वो ऐसी जगह पे थे पर पहाड़ था, वहाँ से जैसे ही वहाँ पर किया उन्होंने चिल्लाया तो उनकी आवाज़ वापस आई स्टूडेंट्स। ओके, द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो अनुभव था इसका बहुत बड़ा मतलब है मेरे लिए। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टॉक टेरर एंड कॉन्क्योर्ड इट कैन अप्रिशिएट, इसका मतलब वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी डर देखा और उस डर पर उन्होंने जीत पाई हो। इन डेथ देयर इज़ अ पीस, मौत में कहीं ना कहीं शांति है। देयर इज़ अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, लेकिन मौत का जो डर होता है उसमें बहुत 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 ज़्यादा डर है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानते हैं और कहते हैं, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। बहुत अच्छी लाइन स्टूडेंट्स। क्या हुआ, रूजवेल्ट ने, रूजवेल्ट कौन थे, ये विलियम और डॉगलस इनके एडवाइज़र थे, ये एक्स यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट हैं थे स्टूडेंट्स। तो ये क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि रूजवेल्ट ने, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, सिर्फ अगर हमें डरना चाहिए किसी से तो वो सिर्फ डर से डरना चाहिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस। अब ये बता रहे बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस, मैं जैसा कि एक्सपीरियंस कर चुका था, मरने का जो डर होता है क्या होता है, क्या कैसा लगता है, टू लिव सम हाउ ग्रीव इन द इंटेंसिटी, और कैसे करके उस चीज़ पे पाकर जिया जाता है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक टू द ट्रेल्स एंड क्लाइंब एंड पीक एंड ब्रश असाइड द फियर। और लास्ट में मुझे ये अच्छा लगा और फिर मैं आराम से आसानी से फ्री मुक्त होकर घूम सकता था, पहाड़ों पर घूम सकता था, पर्वतों पर चढ़ाई कर सकता था, अपने डर को साइड करके।
सो स्टूडेंट दैट्स ऑल, ये स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट्स, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा यू ऑल विल एबल टू डू इट बाय योर सेल्फ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क स्टूडेंट्स, बिकॉज इंग्लिश में यू नीड अ वेरी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। सो ये पूरी वीडियो आप लोग देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 को देखिए स्टूडेंट्स, बहुत बहुत ज़रूरी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।